بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فصل في الاستنجاء. نورالعزا کتاب الطہارت کا بیان چل رہا ہے اور یہاں سے استنجا کا بیان شروع ہوگا۔ استنجا یہ باب استفعال سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پاکی حاصل کرنا، اور اس کا مادہ نجو سے ہے۔ پیٹ سے نکلنے والی نجاست کو نجو کہتے ہیں۔ اس نجاست کو دور کرنا اور جہاں سے نجاست نکلتی ہے اسے صاف کرنا، یہ پروسیس کو استنجا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے جو ہے مخصوص مسائل بعض مردوں کے متعلق وہ بیان کریں گے۔ کہتے ہیں کہ یلزم الرجل الاستبراء، کہ مرد کے لیے پاکیزگی حاصل کرنا ضروری ہے۔ استبراء کا کیا معنی ہے؟ استبراء کا معنی ہے کہ اطمینان حاصل کر لینا اس بات پر کہ پیشاب کے خطرے اب نہیں آئیں گے، یعنی کہ جب پیشاب کے لیے جائیں گے تو وضو اس کے فوراً بعد شروع نہیں کریں گے، بلکہ تھوڑی دیر تک یہ اطمینان کریں گے کہ اب پیشاب کے خطرے ڈراپس نہیں آئیں گے۔ یہ استبراء ہے، اور حصول اطمینان کے لیے کئی طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا پیشاب کرنے کے بعد کچھ دیر چلنا، اور اس سے جو ہے کبھی بعض اوقات قطرے نکل آتے ہیں، یا پھر کھانسنے سے، یا پھر لیٹنے سے، یا پھر پاؤں پر دباؤ ڈالنے سے وغیرہ، جو بھی خطرات اس سے نکل جاتے ہیں تو پھر آدمی مطمئن ہو جائے کہ اب مزید خطرے نہیں آئیں گے، تو پھر اس کے بعد وہ طہارت کر لے، پانی کا استعمال کرے اور عضو کو دھو لے، اس کے بعد جو ہے یہ وضو شروع کرے۔ عموماً عورتوں کو اس طرح کے مسائل نہیں ہوتے۔ فرما رہے ہیں کہ یلزم الرجل الاستبراء حتی یزول اثر البول، یہاں تک کہ پیشاب کا اثر ختم ہو جائے۔ بول کہتے ہیں پیشاب کو، ٹھیک ہے۔ وَيَطْمَئِنَّ قَلْبَهُ، اور اس کے دل کو اطمینان ہو جائے، عَلَى حَسْبِ عَادَتِهِ، ٹھیک ہے، عَلَى حَسْبِ عَادَتِهِ اما بالمشی، اب اس کی عادت کے مطابق، چاہے وہ چلنے کے ذریعے ہو، اما بالمشی، مشی چلنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ او التنحنح، تنحنح کہتے ہیں کھانسنا، او التنحنح والاضطجاع، یا پھر جو ہے لیٹنا، استجاع لیٹنے کو کہتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عموماً جو بھی طریقہ سوٹیبل ہو یا جس سے وہ کمفرٹ محسوس کرے، جس سے اس کی عادت جیسی ہو۔ بعض لوگوں کو جو ہے پیشاب کے بعد چلنے کے بعد تھوڑے سا قطرے آتے ہیں، بعض جو ہے کھانستے ہیں تو انہیں قطرے آتے ہیں، تو اس کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ جس طریقے کی بھی اسے عادت ہو تو ان میں سے وہ طریقہ اختیار کرے، اور یلزم کہہ کر یہ بتلایا کہ یہ لازم ہے مرد کے لیے کہ وہ استبراء کرے، ٹھیک ہے۔ ولا یجوز له، اور اس کے لیے جائز نہیں ہے، الشروع فی الوضوء، وضو کا شروع کرنا، حتی یطمئن بزوال رشح البول، یہاں تک کہ اسے اطمینان حاصل ہو پیشاب کے قطروں کے چلے جانے کا، زوال ختم ہو جانا، زائل ہو جانا، رشح قطرات کو کہیں گے چھینٹے، بول پیشاب کو کہیں گے، رشح البول پیشاب کے قطرے، یہاں تک کہ وہ مطمئن ہو جائے پیشاب کے قطروں کا زائل ہو جانا، ٹھیک ہے۔ ورنہ کیا ہوگا کہ آدمی وضو شروع کرے گا، پھر اس کے بعد درمیان میں اگر قطرات نکل آئے تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ اسے طہارت کر کے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، اس میں حرج ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے پہلے ہی جو ہے استبراء کرنا ضروری ہے۔ والاستنجاء سنت من نجس یخرج من السبیلین،
اور استنجا کرنا یہ سنت ہے، سنتن یہ سنت ہے، من نجسن ناپاکی سے، یخرج جو نکلتی ہے، من السبیلین دونوں راستوں سے، ما لم یتجاوز، ما لم یتجاوز المخرج جو مخرج سے تجاوز نہ کرے، مخرج نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں، تجاوز کرنا کراس کرنا، ٹھیک ہے، معلم یتجاوز المخرجہ و ان تجاوز، اور اگر وہ تجاوز کر جائے یعنی مخرج سے زیادہ ہو، وکان قدر الدرہم، اور اس کی مقدار درہم کے برابر ہو، اگر اس کی مقدار درہم کے برابر ہو تو کہتے ہیں کہ وجب ازالتہ، اس کو پاک کرنا واجب ہو جاتا ہے، بالماء پانی کے ذریعے، وَإِن زَادَ عَلَى الدِّرْهَمِ، اور اگر درہم سے زیادہ ہو، افترض، تو وہ فرض ہو جاتا ہے، یعنی اسے پاک کرنا فرض ہو جاتا ہے، افترض غسلہ، وَيَفْتَرِضُ غسل ما فی المخرج عند الاغتسال من الجنابت والحیض والنفاس، جنابت، حیض اور نفاس سے غسل کرتے وقت جو کچھ مخرج میں ہو اسے دھونا فرض ہے، وَإِنْ كَانَ مَا فِي الْمَخْرَجِ قَلِيلًا، اگرچہ کہ جو کچھ مخرج میں ہے یعنی وہ جگہ ہے وہاں تھوڑا سا اس میں باقی رہے تو کوئی حرج نہیں کہتے، اگرچہ کہ اس میں باقی رہے، وَإِنْ وَأَنْ يَسْتَنْجِي بِحَجَرٍ مُنَقَّهٍ وَنَحْوِهِ، اور پاک کرنا کس چیز سے پاک کرنا ہو تو کہتے ہیں کہ صاف کرنے والے پتھر اور اس کی مثلا ڈھیلا وغیرہ سے استنجا کرے، والغسل بالماء احب، اور جو ہے پانی کا استعمال کرنا یہ پسندیدہ ہے، والافضل الجمع بین الماء والحجر، اور افضل یہ ہے کہ پتھر کا بھی استعمال کرے اور پانی کا بھی استعمال کرے، فَيَمْسَحُ ثُمَّ يَغْسِلْ، پھر کیا کہتے ہیں کہ پہلے وہ پتھر سے مسح کرے، اسے اس جگہ کو مخرج کو صاف کرے، اس کے بعد پھر اسے دھوئے، وَيَجُوزُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى الْمَاءِ، اور صرف پانی پر اکتفا کرنا یہ بھی جائز ہے، اوِ الحجر، یا صرف پتھر پر اکتفا کرنا وہ بھی جائز ہے، وَالسُّنَّةُ إِنْقَاءُ الْمَحَلِّ وَعَدَدُ فِي الْأَحْجَارِ مَنْدُوبٌ لَا سُنَّةٌ مُؤَكِّدَةٌ، آگے کہہ رہے ہیں کہ پتھروں کی تعداد مستحب ہے، سنت موقدہ نہیں، اگر آگے فرمائیں گے فَيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ نُدُبًا، سنت موقدہ نہیں، اگر 3 پتھروں سے کم کے ساتھ پاکیزگی حاصل ہو جائے، ان حصل تنظیف بدونها، اگر 3 پتھروں سے کم کے ساتھ پاکیزگی حاصل ہو جائے تو 3 پتھروں کا استعمال کرنا مستحب ہے کہتے ہیں۔ اب پوری بحث کا خلاصہ پہلے سمجھ لو، استبراء کے تعلق سے بتا دیا، اب یہاں ایک اصول بیان کر رہے ہیں پیچھے جو گزرا، وہ کہتے ہیں کہ استنجا اس نجاست سے سنت ہے جو بھی 2 راستوں سے نکلے اور نکالنے کی جگہ سے تجاوز نہ کرے، یعنی زیادہ نہ ہو، یعنی کہ جو بدن کے کتنے حصے کو وہ گھیرے گی اس کے متعلق یہ حکم لگا رہے ہیں۔ استنجا کی یہاں 3 قسمیں بیان ہوئی ہیں، پہلی ہے سنت، دوسری ہے واجب اور تیسری ہے فرض۔ نجاست مخرج سے ادھر ادھر نہ لگے تو استنجا سنت ہے، اگر 1 درہم کا اندازہ کراس کرے یعنی کہ تقریباً 1 درہم کے موافق، درہم کتنا ہوتا ہے، ہتھیلی کے گڑھے کے جتنا ہوتا ہے، اور اس کی اگر کیلکولیشن صحیح کریں گے تو 2.75 سینٹی میٹر، آپ اس کو سینٹی میٹر کے حساب سے اس کا قطر کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، 2.75 میٹر یا 1.1 انچز، اگر انچز کے حساب سے دیکھیں گے تو اتنا، جو سکہ 1 روپیے کا سکہ جتنا ہوتا ہے ہمارے یہاں، تو پہلے جو گول بڑا والا آتا تھا وہ ابھی چھوٹا والا جو آتا ہے وہ نہیں،
जो 2 रुपये का सिक्का पकड़ लें, 1 रुपये 2 रुपये के जो साइज का सिक्का होता है, तो पहले दिरहम उन साइज के हुआ करते थे, 2.75 सेंटीमीटर। तो ये एक जनरल अंदाजे वाला कैलकुलेशन है कि अगर उतनी नजासत, ऐसा नहीं कि उतनी ही बड़ी एक ही जगह पर हो, थोड़ी थोड़ी अलग अलग मकामात पे हो और उसको जमा कर लें तो वो उतनी हो जाए, तो फिर कहते हैं कि वो 1 दिरहम के बराबर हो जाएगी। तो अगर 1 दिरहम के बराबर हो तो फिर उसे साफ करना जो है वाजिब हो जाता है। और आगे फरमाते हैं कि 1 दिरहम से ज्यादा हो जाएगी, 1 दिरहम की उतनी है तो फिर वाजिब, और 1 दिरहम से ज्यादा है तो फिर फर्ज हो जाता है। ठीक है। तो अगर नजासत का जिस्म हो तो 1 दिरहम मुराद होगा, जो आजकल के वजन के एतबार से 2.9 या 3 ग्राम के करीब बनता है। और अगर नजासत फैली हुई हो लिक्विड होने की वजह से, जैसे कि पेशाब वगैरह, तो वजन मुराद नहीं होगा, बल्कि फैलाव मुराद होगा। यानी जितना आजकल चांदी का रुपया वगैरह है, तो या फिर 1 रुपये का सिक्का जैसे मैंने बताया, उतनी नजासत अगर जगह पर लग जाए तो ये दिरहम के अंदाजा तजावुज शुमार हो जाएगा। ठीक है, तजावुज करना, क्रॉस करना, उससे ज्यादा होना। अब ये गहराई के साथ बयान किया, हालांकि हम यहाँ उमूमन क्या करते हैं, थोड़ी नजासत हो या ज्यादा नजासत हो, पानी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। मैं ये बताऊंगा आगे चल के कि ये मसाइल कहाँ ज्यादा काम आते हैं। उमूमन हमारे इलाकों में पानी होता है तो ये महसूस नहीं होता, लेकिन बाज़ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर पानी नहीं आता, या तकरीबन जो है 15-15 दिनों तक पानी नहीं आता, और बोरवेल का भी इंतज़ाम नहीं होता, या दूर-दूर से पानी लेकर आना पड़ता है। ऐसे लोग जब इस्तिंजा के लिए जाते हैं तो जो है वॉशरूम्स बाज़ाब्ता नहीं होते, वो पहाड़ी इलाके में, जंगल वगैरह में चले जाते हैं। तो वहाँ पर इस्तिंजा का तरीका क्या होगा, क्योंकि पानी वो थोड़ा-सा एक लोटा लेकर जाते हैं, तो कैसे हासिल करेंगे? तो उन्होंने सूरत ये बताई है कि देखें, जो ढेले होते हैं, ढेले जो मिट्टी के ढेले होते हैं, उससे भी जो है इस्तिंजा किया जा सकता है। यानी कि टॉयलेट बाथरूम को जब जाते हैं तो फिर अपनी जगह को उससे पहले साफ कर लिया जाए, साफ करने के बाद फिर पानी से धोया जाए। कहते हैं कि ये अफजल है कि पत्थर को और पानी को, दोनों को साथ में ले लेना, ये अफजल है। लेकिन अगर सिर्फ पत्थर से इस्तिंजा करे तो भी काफी है, या फिर सिर्फ पानी से इस्तिंजा करे तो भी काफी है। हमारे यहाँ उमूमन हम क्या करते हैं, सिर्फ पानी से इस्तिंजा करते हैं। और अरबों के यहाँ पहले, चूंकि वो गर्म इलाके थे, खुश्क इलाके थे, और पानी भी कसरत से ज़्यादा वो उनके इस्तेमाल में नहीं होता था, और उनकी ग़िज़ा भी जो है बहुत गर्म और खुश्क हुआ करती थी, जैसे कि खजूरें। अक्सर औक़ात गोश्त और खजूर वग़ैरह पर वो इत्तेफ़ाक, क्योंकि वेजिटेबल्स वग़ैरह ये जो लिक्विड वाली चीज़ें थी, इस तरह की मयस्सर नहीं आती थी। तो उस वजह से जो है, जब वो बाथरूम को जाते थे, तो जो है टॉयलेट वग़ैरह वैसा नहीं होता, खुश्क होता था, ऐसा गीला नहीं होता था। तो वो खुश्क होने की वजह से सिर्फ़ जो ढीले वग़ैरह से भी अगर साफ़ कर लो, तो वो साफ़ हो जाता था, गंदगी नहीं नज़र आती थी, ना स्मेल वग़ैरह आती थी। तो ये पहले जो है आसान था। हमारी यहाँ की ग़िज़ाएँ बिल्कुल मुख्तलिफ़ हैं, और यहाँ सिर्फ़ ढीले पर इक्तिफ़ा करना ये काफ़ी नहीं होता, क्योंकि पूरी तरह से सफाई हासिल नहीं होती। इसीलिए जो है ढेले का और पानी का दोनों का इस्तेमाल करना बेहतर है। अब ये ढेला उस वक़्त इस्तेमाल किया करते थे लोग जबकि इस तरह के शहरी आबादी इलाकों में नहीं रहते थे, देहात वग़ैरह हुआ करते थे, जंगल वग़ैरह में वॉशरूम को ओपन स्पेसेस में जाया करते थे, तो वहाँ पत्थर, ढीले वग़ैरह आसानी से मयस्सर होते थे। लेकिन अभी चूँकि फ्लैट वगैरह के सिस्टम्स होता है, लोग इतना ओपन स्पेसेस नहीं होते और इस तरह नहीं जाते, तो फिर अब उसका रिप्लेसमेंट क्या है, हमारे यहाँ टिश्यू पेपर का इस्तेमाल होता है। जो टॉयलेट के टिश्यू पेपर्स होते हैं, वो कायम मकाम ढीला है, ठीक है? यानी कि जब टॉयलेट बाथरूम को जाएँ, और अगर कोई शख्स पानी की जगह सिर्फ़ टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करता है, तो भी तहारत के लिए वो काफ़ी है, कहते हैं। और अगर टिश्यू पेपर के साथ पानी का इस्तेमाल करता है तो ये अफ़ज़ल है, और सिर्फ़ पानी का इस्तेमाल करेगा बगैर टिश्यू पेपर के तो ये भी जायज़ है। ये भी
क्या कहते हैं, पसंदीदा है। तो तीनों सूरतों के जायज होने की बात कही है। अफजल सूरत दोनों को जमा करना है। अब आप कहेंगे कि हर घर में तो टिश्यू पेपर इस्तेमाल नहीं होता। हाँ, बिल्कुल दुरुस्त बात है, ये हर जगह इस्तेमाल नहीं होता। अलबत्ता आप कुछ सिनारियोज देखते हैं, स्पेसिफिक सिनारियो, कि जहाँ टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना ये मजबूरी बन जाता है। मिसाल के तौर पर आप ट्रैवल वगैरह करते हैं और ट्रेन या बसेस वगैरह का सफ़र करते हैं। ट्रेन में तो चलें फिर भी कभी जो है पानी मिल ही जाता है, तो वहाँ इस्तिंजा कर सकते हैं। अलबत्ता जो है बसेस का ट्रैवल करते हैं तो बाज़ मकामात पर, ऐसी जगह पर बसेस रुक जाती हैं, मजबूरन रुका दिया जाता है कि जहाँ वॉशरूम्स बाज़ाब्ता नहीं होते, तो और इंसान की मजबूरी है, वो रोक भी नहीं सकता। तो फिर ऐसी सूरत में उसके लिए क्या है कि अगर ढेला मिल जाए तो बेहतर है, ताकि वो ढेला क्या करता है, पानी को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, यानी लिक्विड आप नजासत जो होती है उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और कपड़ों पर नहीं लगता। तो इससे भी पाकी हासिल हो जाती है। असल चीज़ है नजासत का दूर करना, ठीक है? और पानी ना हो तो ये टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह सबसे ज़्यादा मजबूरी बनती है आप जब फ्लाइट्स में होते हो, एरोप्लेन में होते हो, तो वहाँ जब आप उम्रा वगैरह के सफ़र के लिए जाते हैं या कहीं और दूसरे ममालिक को जाते हैं, जहाँ ट्रैवल लंबा होता है और अचानक जो है वॉशरूम जाने की नौबत आ जाती है, तो अब याद रखें, जो डब्ल्यूसी टॉयलेट्स होते हैं उसके अंदर एरोप्लेन में, वहाँ पर आपको पानी नहीं होगा धोने के लिए। यानी आप चाहे 1 नंबर की नजासत करें या 2 नंबर की, दोनों सूरतों में आपको पानी इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, वहाँ पर पानी होता ही नहीं है, ना नल होता है, ना फिर जेट होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो आप उस सूरत में कैसे नजासत से बरात हासिल करेंगे? तो वहाँ सिर्फ़ टिश्यू पेपर रखे होते हैं, उन टिश्यू पेपर से आप जो है पेशाब और पाख़ाना दोनों के लिए उसे इस्तेमाल करना पड़ता है, सफाई के लिए। ठीक है? उमूमन सिर्फ़ पेशाब के लिए इस्तेमाल करना ये ज़्यादा पसंदीदा होता है, लेकिन आपके लिए बेहतर ये है कि अब वहाँ पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है थोड़ा-सा होता है सिर्फ़ हाथ धोने के लिए। अगर ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा-सा टिश्यू पेपर गीला करके जो है क्लीन कर सकते हैं, ये बेहतर है। या फिर आप गीले वाइप्स जो होते हैं, वेट वाइप्स जो बच्चों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो अपने साथ में जो है सफ़र में अपने बैग में रखना ये ज़्यादा मुनासिब है, ताकि इंसान जो है तहारत प्रॉपर हासिल कर सके और उसी से जो है बाद में बाद में वुज़ू वग़ैरह करना फिर बाद में आसान हो जाए और नमाज़ें सफ़र में भी ज़ाया ना हो। तो वाइप गीले टिश्यू पेपर रखना ये फिर ज़्यादा अफ़ज़ल होगा, क्योंकि ये पानी और क्या कहते हैं ढीले दोनों को जमा करने जैसा है। अब बच्चों के लिए घर में उमूमन जो है टॉयलेट के लिए बच्चे जाते हैं, तो सॉरी, छोटे बच्चे जो 1 साल के अंदर के होते हैं उमूमन, ये जो है इस्तिंजा नहीं कर पाते, जब डायपर में गंदगी कर देते हैं, तो हम कैसे करते हैं उनको गीले वाइप से क्लीन कर देते हैं, क्योंकि हर बार धुलाना भी मुनासिब नहीं होता, बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो याद रखें कि ये गीले वाइप्स का इस्तेमाल करके क्लीन करना, ये उनके लिए इस्तिंजा है और उससे पाकी हासिल हो जाती है। वाइप्स रखने की इसके लिए बात बोल रहा हूँ, क्योंकि वाइप्स में खुशबू भी होती है, इस फ्रेग्रेंस भी होता है, तो उससे जो है ना नजासत मुकम्मल तौर से ज़ायल हो जाती है और गीले भी होते हैं। तो ये ज़्यादा बेहतर है सिर्फ़ ड्राई टिश्यू पेपर इस्तेमाल करने से। ठीक है? तो ये एक मसला हो जाता है। लेकिन बड़ों के लिए भी अगर सफ़र वग़ैरह में जा रहे हैं, तो ये वाइप्स का छोटा एक पैकेट अपने साथ रखना बैग में, ये ज़्यादा मुनासिब है। क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि जहाँ आप जा रहे हैं वो पानी होगा या नहीं होगा, एहतियातन रखें। बाज़ औक़ात ट्रेन में पानी ख़त्म हो जाता है, अब ऐसी सूरत में क्या करेंगे? हाजत को तो जाना है, तो फिर ये बहुत ही एम्बैरेसिंग हो जाता है कि आदमी रोक भी नहीं सकता और जो है क्लीन भी पूरी तरह से नहीं कर सकता। तो टिश्यू पेपर और वाइप्स, गीले वाइप्स का अपने साथ रखना, ये बहुत ज़रूरी होता है सफ़र वग़ैरह में, ठीक है? तो ये जो पत्थर का मसला बयान किया है किताब में, ये पुराने ज़माने के एतबार से है। इस ज़माने में उसका रिप्लेसमेंट जो है टिश्यू पेपर इस्तेमाल होता है। अब ये मोहतरम चीज़ नहीं है, आगे वो बयान करेंगे मसाइल कि किन चीज़ों से इस्तिंजा नहीं कर सकते। कागज़ वग़ैरह चूँकि ये इल्म के लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, तो उससे जो है इस्तिंजा नहीं करना चाहिए, लिखे हुए पेपर जो होते हैं, उससे नहीं करना चाहिए। अलबत्ता
टिश्यू पेपर जो होता है, ये टॉयलेट टिश्यू पेपर, ये बनाए ही टॉयलेट के लिए जाते हैं, तो इसको जो है ये वो कागज जो इल्म वाले कागज हैं उसके बेहुरमती के हुक्म में नहीं आता है, तो इसको बिला झिझक इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। अब हदीस पाक में आया है कि 3 पत्थरों से इस्तिंजा करें। ये 3 पत्थरों का क्यों कहा गया? देखें, ये इसका इस्तेमाल वाजिब नहीं है। 3 पत्थर जो कहा गया, ये असल में नुदुब के लिए कहा गया। नुदुब यानी मुस्तहब है, करेंगे तो सवाब मिलेगा। आ, ये फरमाया है कि अगर असल चीज है तहारत हासिल करना, अगर एक ढीले से तहारत हासिल हो रही है तो एक ही काफी है, या 2 से या 3 से, या फिर नजासत ज्यादा है 4 या 5 की जरूरत पड़ रही है तो बिल्कुल इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वही बता रहे हैं कि सिर्फ 3 पर इक्तफा करना ये लाजिम ऐसा नहीं है, बल्कि 3 से कम या 3 से ज्यादा भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अलबत्ता 3 जो है मुस्तहब है, लेकिन इसमें भी जो है क्या कहते हैं, ताक अदद का एतबार रखें तो ये ज्यादा बेहतर है। यानी कि अगर आप टिश्यू पेपर भी इस्तेमाल कर रहे हैं ढेले की जगह, तो वो 1 या 3 इस तरह से ताक अदद में इस्तेमाल करना ये ज्यादा बेहतर है, फरमा रहे हैं। अब यहाँ से आगे नई बहस शुरू करेंगे कि इस्तिंजा की कैफियत कैसी हो, कि किस तरह किया जाए। तो ये उमूमन तरीके तो अक्सर लोगों को पता होते हैं, और बचपन में ही ये बच्चों को सिखाना ज़रूरी होता है इन मसाइल को। हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम अपने बच्चों तक इस इल्म को ट्रांसफ़र कर सकें, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता इस्तिंजा कैसे किया जाता है, उसका तरीका। बाज़ लोग गलती करते हैं जिसकी वजह से नजासत पूरी तरह से ज़ायल नहीं होती, और फिर जो है बाद में क्या कहते हैं, वज़ू वगैरह नहीं सही होता और कपड़ों को नजासत लग जाती है। अगर मॉडर्न टॉयलेट होते हैं जैसे कि कोमोड वगैरह होता है तो जेट इस्तेमाल होता है। जेट इस्तेमाल करने से वो प्रेशर से क्या करता है, नजासत को धो देता है, फिर बाद में आप हाथ वगैरह का इस्तेमाल करके उसको क्लीन कर सकते हैं। लेकिन अगर जेट नहीं है तो फिर जो है मग होता है, लोटा होता है, उससे इस्तेमाल करके जब करेंगे तो फिर हाथ का इस्तेमाल करना लाजिम हो जाता है, क्योंकि पानी पूरी तरह से उस मकाम तक नहीं पहुंच पाता। तो वो फरमा रहे हैं कि वो कैफियत तुल इस्तिंजाई, और इस्तिंजा की कैफियत कैसी हो, कि कहते हैं कि यमसह बिलहजरिल अव्वली मिन जिहतिल मुकद्दमी इला खल्फ। कहते हैं कि जब इस्तिंजा करना हो तो पीछे से आगे की जानिब जो है आप पत्थर का इस्तेमाल करें। यहाँ मैंने कहा पत्थर, जब भी लफ्ज आए तो समझ लेना कि टिश्यू पेपर भी आप उसके बदले इस्तेमाल कर सकते हो, या वाइप्स इस्तेमाल कर सकते हो जो वेट वाइप्स होते हैं। तो वो इसलिए देखिए तरीका ये इस्तेमाल किया जाए कि नजासत बदन पे फैले नहीं। तो जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन आदमी अपने एतबार से डिसाइड कर सकता है कि किस डायरेक्शन में हाथ घुमाने से कम नजासत बदन पर फैलेगी, तो उस एतबार से जो है ज्यादा से ज्यादा नजासत किस तरह वो क्लीन कर सकता है, उस एतबार से जो है हाथ का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी पीछे से आगे की जानिब हो या आगे से पीछे की जानिब से हो। वो कहते हैं वबिस्सानी मिन खल्फी इला क़िदामिन, और दूसरी सूरत ये है कि पीछे से, फिर दूसरी बार जब करेगा तो पीछे से नहीं, मिन खल्फिन इला क़िदामिन, पीछे से फिर आगे की जानिब, पहले आगे से पीछे और फिर बाद में पीछे से आगे, उसका रिवर्स। वबिस्सालिसी मिन क़िदामिन इला खल्फ, और फिर उसके बाद तीसरी तीसरे लेवल पे फिर आप क्या करेंगे, फिर दोबारा पहले आगे से पीछे की जानिब। क़िदाम आप कुद्दाम क्या मतलब होगा उसका, इला कुद्दामिन, कुद्दाम का मतलब होगा आगे से, और खल्फिन का माना होता है पीछे से। ठीक है। इदा कानतिल खुसियतु मुदल्लातन व इन कानत गैर मुदल्लातिन यबतदिउ मिन खल्फिन इला कुद्दामिन वल मरअतु तबतदिउ मिन कुद्दामिन इला खल्फिन खशियत तलवीस फर्जिहा सुम्मा यगसिलु यदहु। तो वही बात है, इसकी तफसील बताने की ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता वही है कि इस तरीके पर सफाई की जाए कि
زیادہ سے زیادہ نجاست پوری طرح سے کلین ہو جائے، اور ہاتھ کو ڈائریکشن کو اس طرح استعمال کیا جائے، لیفٹ ہینڈ کا استعمال کرنا چاہیے، رائٹ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد یہ کلین کرنے کے بعد پھر پانی کا استعمال کرنا چاہیے، اور جب پانی کا استعمال کریں گے تو لیفٹ ہینڈ کا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد استعمال کرنے کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ 3 انگلیوں کا استعمال کریں گے، اور درمیانی انگلی کو تھوڑا سا بیچ والی انگلی کو اوپر کی طرف لے آئیں گے، اور پھر اس طرح سے یہ اس کو استعمال کریں گے. بیان کیا عورتیں 2 انگلیوں کا استعمال کریں گی، ایک کی بجائے 2 کو اوپر کی طرف لے آئیں گی. تو یہ جو بھی ہے یہ تھوڑا سا جو ہے پریکٹیکل تجربہ ہر ایک کو ہوتا ہے، تو اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ثم يدلك المحل بالماء بباطن اصبع و اصبعین. اصبع انگلی کو کہتے ہیں، اصبع انگلی کو کہتے ہیں، اصبعین 2 انگلی، او ثلاثتین یا پھر 3 انگلیاں. ٹھیک ہے. ان احتاج ويسع وان يحتاج يسعد الرجل اصبعه الوسطى على غيرها في ابتداء الاستنجاء، ثم يسعد بنصره ولا يقتصر على اصبع واحد. وہی بتا رہے ہیں کہ انگلیوں کا استعمال آدمی جو ہے 3 انگلیوں کو جب استعمال کرے گا تو درمیانی انگلی تھوڑا سا اوپر کی طرف ہو ابتدا میں، پھر اس کے بعد جو ہے ہاں کہ کہتے ہیں کہ 1 یا 2 انگلیوں یا ضرورت ہو تو 3 انگلیوں کو جو ہے ساتھ رگڑے، اور مرد استنجا کی ابتدا میں درمیانی انگلی کو دوسری انگلیوں پر چڑھائے، پھر بنسر یعنی چھوٹی ساتھ والی انگلی کو اس پر چڑھائے، لیکن ایک ہی انگلی پر اکتفا نہ کرے. بس اتنا آج یہ درس میں کافی ہے، ہم اگلے درس میں کنٹینیو کرتے ہیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.